ہیں آج ہم جو ہے دنیاوی روٹی کے بارے میں، اور وہ ہے روٹی کا وسیلہ۔ آج ہماری روٹی کا کوئی نہ کوئی جو ہے وسیلہ جو ہے وہ بنا ہوتا ہے، کسی کے بھی وسیلہ سے ہمیں جو ہے وہ روٹی جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان جو ہے اس روٹی کے لیے بڑی مشقت کرتا، بڑی محنت کرتا، اور گرمی میں، سردی میں، آندھی بارش طوفان، اس روٹی کے لیے وہ دوڑ لگاتا ہے تاکہ اپنے بچوں کی روٹی کو جو ہے وہ پورا کر سکے۔ اور اس روٹی کے لیے جو ہے بہت سارے ہمارے وسیلے جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں خدا جو ہے یہ روٹی جو ہے ہمیں دیتا ہے، اور اس روٹی کو جب ہم کھاتے ہیں ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور یہ روٹی جو ہے رزق کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ رزق کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا جو ہے آسمان کھول کر ہمیں اپنے رزق سے جو ہے وہ نوازتا ہے۔ بہت سارے لوگ آج بڑی اچھی روٹی کھاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو روٹی کھانے سے قاصر ہیں، جو اچھی روٹی نہیں کھا سکتے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ دنیا کے اندر کہ جن کو خدا بڑی اچھی روٹی دیتا ہے، لیکن آج ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی کو اچھا کھاتا ہوا دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ بھی ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہمارے ارد گرد کے لوگ آج اگر کوئی اچھی روٹی کھا رہے ہیں تو یہ ابلیس کی سب سے بڑی جو چال ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ سما جاتا ہے، اور ہم کسی کو روٹی کھاتا ہوا دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ہم اس دنیا کے اندر یہ آخری دور ہے، اور آخری دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ ہم جو ہے جب کوئی ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو پھر جیلسی اسپرٹ، حسد کی اسپرٹ جو ہے ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہے، اور ہم کسی کو کھاتا ہوا دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جیسے تنگی کے حالات میں ہے ایسے ہی رہے تو بہتر ہے۔ تو آج ہم جو ہے اس کلام کو ہم سیکھیں گے کیسے خدا ہمارے رزق کو برکت دیتا ہے، کیسے ہماری روٹی پر برکت آتی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب میں تیری روٹی اور پانی پر کیا دوں گا؟ برکت دوں گا۔ یعنی کہ خدا ہماری روٹی کو برکت دیتا ہے۔ آج ہم اپنی روٹی کو کیسے بابرکت بنا سکتے ہیں؟ آج دنیا کے اندر کٹھن حالات کے اندر کیا آج ہماری روٹی پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ آج ہمارے لیے یہ سوالیہ نشان ہے، اور ہمیں آج خدا سے جو رازق ہے، جو رزق دیتا ہے، جو ساری امتوں کو، ساری قوموں کو آسمان کھول کر رزق دیتا ہے، آج ہم اس سے جو ہے روٹی جب مانگتے ہیں تو پھر وہ روٹی جو ہے ہمیں دیتا ہے۔ آج روٹی جو ہے انسان جو ہے اس کے لیے جب مجبور ہوتا ہے تو اس روٹی کی وجہ بہت کچھ جو ہے ایسا کام کر گزرتا ہے کہ جس کو خدا بھی پسند نہیں کرتا، اور جب کسی سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی بہت ہی مجبوری ہے، اس روٹی کے لیے ہم ایسا کام کر رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں روٹی کے لیے، کسی کو مار دینا، کسی کو قتل کر دینا روٹی کے لیے، چوری کر لینا روٹی کے لیے۔ تو آج بہت سارے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں، ایسے گھرونے کام کر رہے ہیں تاکہ 2 وقت کی روٹی جو ہے اس کو پورا کر سکیں۔ اکثر میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں تو بہت سارے لوگوں کے ایسے انٹرویو آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی روٹی کے لیے، بچوں کی روٹی کو بھی تو پورا کرنا ہے، بچوں کو پالنا ہے۔ یہاں تک کہ روٹی کے لیے انسان اپنے آپ کو بیچ دیتا تاکہ روٹی کو جو ہے وہ پورا کر سکے۔ آئیے بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے اس روٹی کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہوا، اس رزق کا آغاز، اور آج خدا ہماری روٹی کو کیسے بابرکت جو ہے بناتا ہے۔ تو میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب، پیدائش کی کتاب میں سے ہم دیکھیں گے، اور اس کا جو ہے 3 باب، پیدائش کی کتاب، اور ہم اس کا جو ہے 3 باب دیکھیں گے، اور اس کی 19ویں آیت میں یہاں پر لکھا ہے تو اپنے منہ کے
पसीने की रोटी खाएगा, जब तक कि तू जमीन में फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तुझसे निकाला गया है, तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। खुदावंद के पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदावंद की बरकत हो। यहाँ पर हम देखते हैं पैदाइश की किताब में आगाज ही में बागे अदर के अंदर आदम और हवा को रोटी की जरूरत नहीं थी। खुदा हर चीज उनको मुहैया कर रहा था। वाफर मकदार में अदन के अंदर बागात थे, अच्छे अच्छे फलों से लदे हुए दरख्त थे, हर चीज वाफर मकदार में थी, हर अराय सरसाइश। लेकिन जब गुनाह आ गया तो गुनाह के बाद इंसान को जरूरत पड़ी कि वो मशक्कत करे, मेहनत करे और रोटी को कमाए ताकि उसको खाए और अपना पेट जो भर सके। अब यहाँ पर जब खुदा सजा सुनाता है तो यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तो अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। आज इंसान इतना पसीना बहाता है फिर जाकर रोटी पूरी होती है। इंसान अपने आप को जो मारता है, कूटता है, फिर जाकर उसे रोटी खाना नसीब होती है। और रोटी कमाने के लिए आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे पापड़ भी बेलने पड़ते हैं, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बड़े कठिन हालात से गुजरना पड़ता है और फिर जाकर हमारी रोटी का जो है वो आसरा जो है बनता है। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी जो हमारी रोटी का आसरा छीनना भी चाहते हैं। छीनने वाले भी आपके इर्द गिर्द हैं जो आपकी रोटी का आसरा छीनना चाहते हैं। लेकिन जब खुदा रोटी देता है, रिज़्क़ देता है, तो इसको कोई छीन नहीं सकता क्योंकि वो खालिक और मालिक की तरफ से है। तो यहाँ पर खुदा ने आदम से कहा कि तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। यहाँ पर रोटी का जो लफ्ज है पहली दफा पैदाइश की किताब में हमें नजर आ रहा है, जहाँ पर खुदा जो है रोटी के बारे में कह रहे हैं कि तू अपने मुंह के पसीने की रोटी जो है वो खाएगा। और आज इंसान जो है जब रोटी के लिए यह आज देखते हैं कि दर बदर को धक्के खाता है। आज रोटी कमाने के लिए लोग इस मुल्क से दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, वहां पर मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि अपने घराने का अच्छा बंदोबस्त कर सकें, अपने बच्चों को अच्छी रोटी, अच्छी खुराक जो है वो दे सकें। अब यहाँ पर पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि खुदा ने कहा कि तू अपने मुंह के पसीने की क्या खाएगा? रोटी खाएगा। यानी कि पसीना बहाए बगैर तो रोटी को कमा नहीं सकता। आज पसीना बहाना पड़ता है, आज मेहनत करनी पड़ती है और बाइबल मुक़द्दस में भी लिखा है कि मेहनती के हाथ उसे दौलतमंद बना देते हैं। तो आज रोटी का जो वसीला है वो खुदा बनाता है। जब खुदा बनाता है तो आपकी उस रोटी को कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से जय मुकर्रम है। जितने मर्जी लोग आपसे जेलसी करें, जितने मर्जी लोग आपके खराब हो जाएं, जो रोटी खुदा आपको दे रहे हैं उसको कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो खुदा दे रहे हैं, इंसान नहीं दे रहा। इंसान जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान तो किसी को जो है एक घूंट पानी भी नहीं दे सकता। आज का इंसान जो है वो बड़ा जालिम हो गया। हम किसी को जो है अच्छा खाता हुआ देख ही नहीं सकते। आज इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं और अक्सर हम देखते हैं कि जो कहते हैं कि हमारे जो अपने शरीक होते हैं सबसे बढ़कर वो ही हमारे खिलाफ होते हैं, वो ही खिलाफ होते हैं। तो लेकिन जिसको खुदा बरकत देता है ना, उसे कोई बरकत को छीन नहीं सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा जो है हमारी रोटी का जो है वसीला बनाता है। अब रोटी से हम कैसे तासर हो जाते हैं? क्यों दर बदर बात लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं? अब बाइबल मुक़द्दस में अगर हम देखते हैं, शरीयत की किताब में ऐसा निकालिए, अहबार की किताब है 26वां बाब, अहबार की किताब 26वां बाब हम देखेंगे और उसकी जो है 23वीं आयत को यहाँ पर अगर इन बातों पर तुम मेरे लिए ना फिक्रो बल्कि मेरे खिलाफ ही चलते रहो, तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ चलूंगा और मैं आप भी तुम्हारे गुनाहों के लिए तुमको और 7 गुना मारूंगा और तुम पर एक ऐसी तलवार चलाऊंगा जो अहले खुदी का पूरा इंतकाम करेगी। और जब तुम अपने शहर के अंदर जाकर इकट्ठे हो जाओ तो मैं वो
खाएगी और तुम्हारी इन रोटी उन रोटियों को तोड़ कर देती जाएगी और तुम खाते जाओगे पर शेष ना हो। आमीन। अब यहाँ पर अहबार की किताब में से हमने इस हवाले को पढ़ा है। अब इस हवाले पर हमें जो है नजरसानी करने की जरूरत है और बड़ा ध्यान लगाने की जरूरत है कि खुदा ने ये बात क्यों कही है। अहबार की किताब को हमने पढ़ा है और यहाँ पर लिखा है अगर उन बातों पर भी तुम मेरे लिए ना सुधरो बल्कि मेरे खिलाफ ही चलते रहो तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ चलूंगा और मैं आप ही तुम्हारे गुनाहों के लिए तुमको और 7 गुना मारूंगा और तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो अहद शिकनी का पूरा इंतकाम ले लेगी। और जब तुम अपने शहरों के अंदर जाकर कटे हो जाओ तो मैं वबा को तुम्हारे दरमियान भेजूंगा और तुम गनीम के हाथ में सौंप दिए जाओगे और जब मैं तुम्हारी रोटी का सिलसिला तोड़ दूंगा। अब यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है मैं तुम्हारी रोटी का सिलसिला तोड़ दूंगा। रोटी खुदा की तरफ से आती है और सिलसिला खुदा तोड़ रहा है कि जब हम खुदा के आइन कवानीन के खिलाफ चलते हैं। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है अगर तुम उन बातों पर भी ना सुधरो मेरे खिलाफ चलते रहो तो फिर मैं क्या करूंगा, तुम्हारी रोटी का सिलसिला तोड़ दूंगा, फिर तुम दर बदर थके खाते रहोगे। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको बहुत ही दर बदर थके जो है खाने पड़ते हैं। और आज जब हम खुदा के आइन, खुदा के कलाम, खुदा के अहकामात के खिलाफ चलते हैं, जब हमारी जिंदगी में गुनाह पर गुनाह आता है और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि फिर मैं तुम्हारी रोटी का सिलसिला जो है वो तोड़ दूंगा, तुम्हारी रोटी का सिलसिला तोड़ दूंगा। और एक बात कलाम मुक़द्दस में लिखी है कि शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं पर मेरे तालिब किसी नेमत के मोहताज ना हो। जो खुदा के तालिब, उनको खुदा जो खुदा के तालिब हैं उनका सिलसिला खुदा नहीं तोड़ता, उनका सिलसिला जुड़ा रहता है। खुदा किसी ना किसी को उनके साथ जोड़ देता है। खुदा कोई ना कोई वसीला उनके लिए बना देता है। खुदा कहीं ना कहीं से उनके लिए रोजगार मुहैया कर देता है। खुदा कहीं ना कहीं से उनको रोटी मुहैया कर देता है। अब हम बाइबल मुक़द्दस में जब देखते हैं एलिया जब कोई किरमल की चोटी पर बैठा था तो रोटी और गोश्त कौन लेकर जा रहे थे? कौवे। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि कौवों को खुदा ने हुक्म दे दिया था। अब कौवे जो अगर आप देखते हैं ये मुर्दार खाने वाले, और कौवे को जो है हम समझते हैं कि ये मुर्दार खाता है, नापाक चीजें खाता है, लेकिन क्योंकि वो खुदा की मखलूक है, खुदा ने बनाया, खुदा ने कौवे को हुक्म दे दिया कि मेरा बंदा एलिया कोई किरमल की चोटी पर बैठा है, वहां पर ना रोटी का इंतजाम है ना गोश्त का इंतजाम है। खुदा ने कौवे को हुक्म ऑर्डर कर दिया, हुक्म जारी कर दिया, ऑर्डर उनको दे दिया कि मेरा बंदा जो है वो कोई किरमल की पहाड़ पर अकेला बैठा है, उनको जाकर रोटी और गोश्त दो। खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है। आप जहां कहीं भी हैं, आप पहाड़ों के अंदर है, जंगलों के अंदर है, सफर के अंदर है, घर के अंदर है, कहीं पर भी हैं, अगर आप खुदा के तालिब हैं तो खुदा किसी ना किसी को आपका वसीला बना देगा। खुदा ने कौवे को वसीला बना दिया, खुदा ने कौवे को इस्तेमाल किया क्योंकि एलिया खुदा का तालिब था, एलिया खुदा की इबादत करने वाला था, एलिया खुदा का बंदा था, उसकी हुजूरी में झुकने वाला था। खुदा ने उसको भूखा नहीं रहने दिया। इसलिए बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं पर खुदा के तालिब किसी नेमत के मोहताज। जिस दिन आप खुदा के तालिब बन जाएंगे, खुदा को बैठे बैठाए खिलाएगा। रोटी कहां से आएगी, कैसे खुदा की रिज़्क़ को बरकत देगा, आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन सबसे पहले हमें खुदा का तालिब बनने की जरूरत है, खुदा के अहकामात के मुताबिक चलने की जरूरत है, सच्चाई के मुताबिक चलने की जरूरत है, फरमाबरदारी के मुताबिक चलने की जरूरत है, पाकीज़गी के साथ चलने की जरूरत है, तो फिर खुदा आपकी फिक्र करेगा। और यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है अगर तुम नहीं सुधरोगे, अब यहाँ पर लिखा है अगर तुम नहीं सुधरोगे, मेरे खिलाफ ही चलते जाओगे
तो मैं तुम्हारी रोटी का सिलसिला जो है वो तोड़ दूंगा। आज अगर हम किसी को नसीहत करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि अच्छा भी अगर तू ना सुधरिया ना तो फिर मैं तेरे हाथ से छाड़ दूंगा, फिर तू जान तो तेरे काम जा। खुदा कह रहा है अगर तुम नहीं सुधरोगे तो मैं तुम्हारे हाथ पर छोड़ दूंगा और तुम्हारी रोटी का सिलसिला जो वो तोड़ दूंगा। रोटी जो है ये खुशहाली को ज़ाहिर करती है, रोटी जो है ये रिज़्क़ को ज़ाहिर करती है, रोटी जो है वो फरावानी को ज़ाहिर करती है, रोटी जो है ये बरकत को ज़ाहिर करती है, रोटी जो है एक अमन और तसल्ली को ज़ाहिर करती है, रोटी जो है आपके घर के अंदर सुकून को ज़ाहिर करती है। आज जहाँ पर रोटी नहीं है आप अक्सर देखिए कि लड़ाई झगड़े होते हैं, रोटी की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे, घर का तनाव नहीं चल रहा, लड़ाई झगड़े हो रहे, और ये रोटी की वजह से सारा निजाम जो है वो धर्म भरम है। आज इस रोटी की वजह से जो है हम एक दूसरे को मारने के लिए जो है वो इस डगर पर आ जाते हैं सिर्फ रोटी के लिए। और यहाँ पर खुदा की कलाम मुक़द्दस में लिखा है अगर तुम नहीं सुधरोगे, अगर तुम नहीं सुधरोगे और मेरे खिलाफ चलते जाओगे तो मैं तुम्हारी रोटी का सिलसिला जो है वो तोड़ दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि रोटी जो है एक बरकत की अलामत है, लेकिन जब ये रोटी हम मेहनत के साथ कमा कर खाते हैं तो इसका फिर लुत्फ भी कुछ और है, मजा ही कुछ। आज लूट मार करके तो बहुत सारे लोग खा रहे हैं रोटी को, खाते वो भी रोटी, गरीब भी रोटी खा रहे हैं, अमीर भी रोटी खा रहे हैं, जो लूट मार करके खा रहे हैं वो भी रोटी खा रहे हैं, जो मेहनत मुशक्कत करके पसीना बहा के खा वो भी रोटी है। ये रोटी है जो इंसान को जो है वो गवा रही है। लेकिन आज हम देखेंगे कि हम कौन सी रोटी खा रहे हैं, वो रोटी जो खुदा की तरफ से है या वो रोटी जो शैतान की तरफ से, वो भी मुहैया कर रहा है, वो भी जहान का खुदा है, वो भी अपने लोगों को गलत तरीकों से रोटी मुहैया जो है वो करता है। लेकिन आज जब हम खुदा के तालिब बन जाएंगे तो खुदा हमारे रिज़्क़ पर जो है वो बरकत देगा और खुदा का जलाल जो है हमारी जिंदगियों में जब वो कसरत के साथ जो है वो ज़ाहिर होगा। तो आज हमें देखना है कि आज इस रोटी को हम जो है कैसे हमारे, आज हमारी रोटी पर बरकत है या नहीं बरकत है। अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि कोई ना कोई खामियां हमारी जिंदगी के अंदर है कि हम रोटी के लिए तरस रहे हैं। बाइबल में तो उस पर लिखा है कि तेरे आटे की मटकी खाली नहीं होगी, ना तेरे तेल की कुप्पी में कमी आएगी, क्योंकि ये खुदा की ब्लेसिंग है, खुदा बरकत दे रहा है। और एक और हवाला हम देखेंगे पैदाइश की किताब 25 बाब और उसकी 33 आयत को हम पढ़ेंगे। पैदाइश 25 बाब और उसकी 33 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर भी हम रोटी के बारे में देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है। आमीन। अब यहाँ पर हम ये जिक्र देखते हैं एसाऊ और याकूब, जो कि हमारे बुजुर्ग इजहाक के बेटे एसाऊ और याकूब। अब यहाँ पर जब हम इस सारे वाक्य को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा और याकूब ने दाल पकाई और एसाऊ जंगल से आया और बेदम हो रहा था, और एसाऊ ने याकूब से कहा ये जो लाल आ रहा है मुझे खिला दे क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ, इसलिए उसका नाम अदोम भी हो गया। तब याकूब ने कहा तू आज अपने पिलोटे का हक मेरे हाथ में भेज दे। एसाऊ ने कहा देख मैं तो मारा जाता हूँ, पिलोटे का हक मेरे किस काम आएगा। तब याकूब ने कहा आज ही मुझसे कसम खा। उसने उसे कसम खाई और उसने अपने पिलोटे का हक याकूब के हाथ बेच दिया। तब याकूब ने एसाऊ को रोटी और मसूर की दाल दी और वो खा पी कर उठा और चला गया। यूं एसाऊ ने अपने पिलोटे के हक को नाचीज जाना। अब यहाँ पर देखिए रोटी की खातर एसाऊ ने रोटी की खातर क्या किया है, अपने पिलोटे का हक बेच दिए, हक बेच दिया है। तो ये रोटी है जो इंसान को बड़ा मजबूर कर देती है, इंसान कहीं से कहीं चला जाता है। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने अपने पिलोटे के हक को नाचीज जाना और अपने पिलोटे का हक बेच दिया एक रोटी के। आज इंसान अपने आप को बेच देता है,
अक्सर मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ बहुत सारे लोग इस रोटी के लिए अपना जिस्म भी बेच रहे हैं। इस रोटी की खातर वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि जिनको खुदा भी पसंद नहीं करता, लेकिन वो कहते हैं जी रोटी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। अब बाइबल मुकद्दस पे यहाँ पर हमें जिक्र जो मिलता है, लिखा है एसाऊ ने रोटी और दाल की खातर अपने पहलौठे का हक क्या किया है? बेच दिया। नाचीज जाना है उसने एक वक्त की रोटी के लिए। और आज भी एक वक्त की रोटी के लिए हम अपने ज़मीर को बेच देते हैं, अपने ईमान को बेच देते हैं, यहाँ तक कि लोग अपने दीन को बेच देते हैं सिर्फ रोटी के लिए। वो खुदा के खिलाफ चले जाते हैं। और यही बात बाइबल मुकद्दस में लिखी है कि अगर तुम नहीं सुधरोगे, मेरे खिलाफ चलते जाओगे, तो मैं तुम्हारी रोटी का सिलसिला जब वो तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारी रोटी का सिलसिला तोड़ दूंगा। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि याकूब को खुदा ने बरकत दी, जिसका नाम इसराइल रख दिया गया, और 12 सरदार पैदा हुए, 12 बेटे पैदा हुए। आगे हम देखते हैं खुदा की ब्लेसिंग है। लेकिन एसाऊ को देखते हैं कि उसने रोटी की खातर अपने पहलौठे का हक जो है वो बेच दिया। तो आज बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि रोटी की खातर इंसान जो है वो क्या कुछ कर गुजरता हो, लेकिन जो रोटी खुदा की तरफ से है वो इत्मीनान की रोटी है, वो तसल्ली की रोटी है, जिसे हम खाकर सब्र और शुक्र जो है वो करते हैं। कभी आप बाहर जाएं, चौकों पर देखें लोग कैसे हालात की जिंदगी बसर कर रहे हैं। लोगों के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं, रोटी मांग कर वो खाते हैं। अक्सर गलियों के अंदर हमें सदाएं जब वो आएगी कि खुदा के नाम पर रोटी दे दो, हमें भूख लगी है। रोटी के लिए पैसे नहीं। आज इंसान रोटी के लिए जो वो तरस रहा है, रोटी के लिए वो दर बदर धक्के खा रहा है। और यहाँ पर कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि एसाऊ ने अपने पहलौठे के हक को क्या जाना है? नाचीज जाना है। किसके लिए? रोटी के लिए। रोटी के लिए उसने अपना हक जो है वो बेच दिया। तो हमें इस बात पर जब फख्र होता है जब यीशु मसीह कहते हैं कि जिंदगी की रोटी मैं, जो कोई खाएगा कभी भूखा ना होगा। हम भूखे नहीं होते, क्योंकि हमें वो रोटी जो है वो मिलती रहती है, हमें रोटी जो है वो मिलती रहती है। आज एसाऊ की तरह भी बहुत सारे लोग हैं जो रोटी की खातर अपने ज़मीर को, अपने ईमान को जो वो बेच डालते हैं। लेकिन जो खुदा के तालिब हैं वो अपने ईमान पर कायम रहते हैं, वो अपने ज़मीर का सौदा नहीं करते, वो वफादार रहते हैं, वो खुदा के साथ वफादार रहते हैं, वो अपने दीन के साथ वफादार रहते हैं, वो अपने मुल्क के साथ वफादार रहते हैं, वो जो है अपने खानदान के साथ वफादार रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम जब वफादारी के साथ रहेंगे तो हमें रिज़्क़ की कमी नहीं होगी, खुदा कमी नहीं आने देगा। खुदा वहां से मुहैया कर देता है जहाँ पर हमारी सोच भी नहीं होती, हमारी सोच भी नहीं जाती। और आज मैं आपको ये इनकरेज करना चाहता हूँ कि कभी इसके लिए परेशान हो। यीशु मसीह ने क्या कहा कि हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, तो फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है, खुदा उनको भी रोटी खिलाता है। जमीन के अंदर अगर हम देखते हैं पत्थरों के नीचे जो कीड़ा है, खुदा उसको भी रिज़्क़ मुहैया कर रहा है, वो पत्थर के नीचे भी रहकर जब वो खा रहा है। ये हमारे खालिक की जो है ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कुदरत है कि जो चरित्र परिंदे वो खा रहे, कीड़े मकोड़े जो हैं उनको खुदा मुहैया कर रहा है। तो हम तो इंसान है, अशरफ मखलूक़ात खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया है, तो खुदा कैसे फिर हमें जो है रोटी से कासर करेगा? रोटी से कासर तब ही हम होंगे जब हमारी हरकतें ऐसी होती हैं, जब हम खुदा के खिलाफ चलते हैं, जब हमारी जिंदगी में गुनाह होता है, जब हम खुदा के तालिब नहीं होते, तो फिर हमें इन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। हमारी जिंदगी में कोई ऐसा रखना होता है और हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तेरी रोटी का सिलसिला तोड़ दूंगा। आज अगर खुदा मुझे अच्छी रोटी दे रहा है, मैं मेहनत मुशक्कत करके अपने बच्चों को खिला रहा, तो ये खुदा की बरकत है, ये खुदा का फजल है कि आप मेहनत मुशक्कत
खून पसीना बहाकर आप इस रोटी को कमा रहे हैं। आप बेईमानी से नहीं, धोखे से जो है वो रोटी नहीं, फ्रॉड करके वो रोटी नहीं, उसके अंदर कोई बरकत नहीं है, उसके अंदर कोई लुत्फ नहीं है, क्योंकि आपके मेहनत मुशक्कत की जो कमाई है उसके ऊपर बरकत है, क्योंकि खुदा आपके रिज़्क पर बरकत दे रहा है। उस रोटी के वसीला से आपके बच्चों को बरकत मिलेगी, आपके खानदान को बरकत मिलेगी। आज हमने देखना है कि हम अपने बच्चों को खिला क्या रहे हैं, या मेहनत मुशक्कत की खिला रहे हैं या फिर ऐसे काम करके उनको खिला रहे हैं कि जिसको खुदा भी पसंद नहीं करता है। तो फिर खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी रोटी का सिलसिला जो है वो तोड़ दूंगा। तो इसलिए रोटी जो है हमारे लिए जो है ये बरकत को ज़ाहिर करती है और इत्मीनान को ज़ाहिर करती है कि आज हम जो है रोटी कौन सी खा रहे हैं। तो इस दुनिया के अंदर रहते हुए हमने अपने आप को देखना है कि आज क्या हमारी रोटी का सिलसिला जो है वो जारी सारी है। खुदा ने पसीना बनाया, खुदा पसीने बनाता है, खुदा बरकत देता है, खुदा जो है मुहैया करता है। इसलिए कि यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं। तो जब रोटी खुदा देता है ना, इस बात को याद रखिए, इंसान को छीन नहीं सकता, इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले। और बाइबल का तो उसमें लिखा है कि खुदा से डरने वालों की चारों तरफ उसके फरिश्ते कहमादार होते हैं। जो खुदा के डर में रहते हैं ना, खुदा से डरने वाले, खुदा के चार फरिश्ते आगे पीछे दाएं बाएं उनको घेरे रहते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, क्योंकि वो खुदा से डरते हैं, खुदा के खौफ में रहते हैं। और रिज़्क जो है खुदा को हर वक्त मुहैया करता रहता है। खुदा के साथ जब हम चलते हैं, उसके ताली बन जाते हैं, तो फिर रिज़्क की कमी नहीं होती। खुदा जो है, और बाइबल का तो उसमें क्या लिखा है, मैं तेरे अंबार खानों पर बरकत दूंगा। अंबार खाने या अंबार खानों के ऊपर खुदा बरकत दे रहा है। मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, मैं तेरे रिज़्क पर बरकत दूंगा। जब ये खुदा के वादे हैं, खुदा के वादे हैं खुदा के लोगों के साथ, जो खुदा के साथ ईमानदारी, वफादारी, दयानतदारी के साथ चलते हैं। तो आज इन कठिन हालात के अंदर, आखिरी दौर के अंदर, जितने भी हम खुदा के साथ वफादारी के साथ चलेंगे, हमारी जिंदगी में रिज़्क की कमी नहीं होगी। आज हम इस रिज़्क के लिए, इस रोटी के लिए अपने ईमान को, अपने ज़मीर को बेच देते हैं सिर्फ चंद रोज की रोटी के लिए। लेकिन असल जो हकीकी रोटी है, अगर उसके तरफ गौर करें तो फिर हम कहेंगे नहीं, मेहनत और मशक्कत और खून पसीने की बहाई हुई रोटी में ही मजा है। आज अगर लोगों को देखिए तो लोग आज रोटी की वजह से, ऐसे ऐसे कई मुल्क हैं जहाँ 24 घंटे में एक दफा रोटी को खाना पड़ती है। एथोपिया के अंदर देखें, लोग लाचार हैं, रोटी नहीं है, काल पड़ा हुआ है, कहत है, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं कि किसी तरह से हमें रोटी मिली। मैं समझता हूँ आप शुक्र गुजारी करें खुदा की, हमें खुदा का शुक्र गुजार होना चाहिए कि खुदा हर चीज हमें वापस उदार में दे रहा है। तो इस रोटी के लिए, इस बरकत के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने क्या कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। जब हम इस पर फोकस कर लेते हैं तो फिर हमें रोटी की कमी नहीं रहती, रोटी की कमी नहीं होगी। खुदा मुहैया करेगा, खुदा खुद भेज देगा। लेकिन जब हम खुदा के ताली बन जाएंगे, खुदा के हजूरी में आ जाएंगे, खुदा के आगे झुक जाएंगे, खुदा खुद मुहैया करेगा। वो यहोवा यरी है, हम कहते हैं यहोवा यरी, तो यहोवा यरी का मतलब है मुहैया करने वाला, खुदा खुद मुहैया करेगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने उसके ताली बनना है। हमने ईमानदारी और ध्यानदारी के साथ, तो फिर हमारी रोटी को कोई छीन नहीं सकेगा, क्योंकि वो रोटी खुदा की तरफ से मिल रही, वो आसमान से मिल रही। जब बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी से निकले, अब 40 साल तक वो बियाबान के अंदर है, तो वहां पर क्या 40 साल को क्या अनाज वहां पर बोया जाता था, गंदम काटी जाती थी, या फिर वो आटा गूंथते थे, रोटियां पकाते थे। खुदा उनको रोटी कहां से भेज रहा था? आसमान से। आसमान से मन सरवा रहा है, आसमान से, क्योंकि खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है। वहां पर जो है औरतों को आटा गूंथना नहीं पड़ा था,
वहां पर गंदम की कटाई करके आटा पीसने की जरूरत नहीं पड़ी। 40 साल तक मन सड़वा, मन जो है आसमान से आ रहा है और वो खा रहे हैं और अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं, क्योंकि वो राज़िक है जो रिज़्क देता है। वो अपने लोगों की फिक्र करता है। 40 साल बियाबान के अंदर उनको रोटी मिल रही है। एलिया कोई केवल की पहाड़ी पर कभी रोटी लेकर जा रहे हैं, तो हमारी कदर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम्हारी कदर तो चिरिंद परिंद से भी ज्यादा है। तो फिर खुदा अपने मांगने वालों को क्या कुछ ना देगा। तो इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम फिक्र करके जब कुछ भी नहीं कर सकते। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, खुदा के जो तालिब है वो फिक्र नहीं करते। वो अपने सारे मामला खुदा पर छोड़ देते। उन्हें पता है कि खुदा हमारा रज़्क़ को खुदा देगा। तो जो खुदा की तरफ निगाहें रखते हैं ना, वो कभी भूखे नहीं रहते। खुदा को अच्छी रोटी देता है, क्योंकि उनकी निगाहें आसमान पर है, खुदा की तरफ है, किसी इंसान की तरफ नहीं। वो खुदा पर, इंसान जो है वो सीधे बनते हैं, खुदा वसीला बनाता है। हम यहाँ पर जितने भी हम एक दूसरे के वसीले बन सकते हैं, वसीले कौन बनाएगा? खुदा बनाएगा। खुदा दिल में बात डालेगा, खुदा कायल करेगा, फिर हम किसी का वसीला बनेंगे, किसी की रोटी का। तो ये खुदा के हाथ में, लेकिन हमारी निगाहें जो है वो खुदा की तरफ होनी चाहिए, ताकि हम जो है खुदा हमारी रोटी पर, पानी पर, रिज़्क़ को बरकत दे। और आज मैं समझता हूँ कि अगर हम अच्छी रोटी खाना चाहते हैं ना, तो अपनी निगाहें आसमान की तरफ लगा लीजिए, निगाहें आसमान की तरफ लगा लीजिए। खुदा बड़ा मेहरबान है, बड़ा गयूर है, वो बड़ा रहम करने वाला है, वो बड़ा कुदरत वाला है। वो अपने लोगों की फिक्र करता है, क्योंकि हम उसकी शबीह पर हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं। तो खुदा ने हमारी जिंदगी में दम फूंका है ताकि हम जीते रहें, और खुदा चाहता है कि हम जीते रहें, हम अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को बसर कर सकें और खुदा के नाम को जो है हम जलाल दे सकें।